this this session will be recorded for you all, so that meanwhile, whenever you require it, you can easily get it from our YouTube link that will be available. So let's begin with what are the basically machine learning things are there for the NLP, and we're beginning with this. So here we have a target, and let's start with this machine learning for natural language problem. So here we are going to understand, here we are going to discuss what are basically the machine learning that can be applied on the natural language processing, that we are going to discuss it here. So the same one. So if you see here, under this situation, you would be able to understand that this is basically the target to understand here. वही हमें यहाँ पर पढ़ना है, and as the details are available, so I'm going to put a screenshot of your attendance here. This one. Thank you. And let's begin with this. So now the target is to understand कि कौन-कौन से ऐसे machine learning के framework हैं जो कि use किए जा सकते हैं आपके NLP में. तो बहुत अच्छी बात है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, देखिए प्रोसेसिंग किसी भी तरीके की हो, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके पास में डेटा आ रहा होगा, और जब आपके पास में वो डेटा अवेलेबल होगा किसी भी तरीके से, इन एनी सेंस, इफ यू आर हैविंग अ डेटा, तो इस डेटा के लिए आपको एल्गोरिथम्स लगानी पड़ेगी. So the target is what? Before we dive deep into the apply machine learning AI for NLP and text analytics, let's clarify some basic ideas. Most importantly, machine learning really means machine teaching. We know that what the machine needs to learn. So our task is creating a learning framework to provide the formatted, relevant, and the clean the data for the machine to learn from. तो ये कितनी अच्छी चीज इसमें कही गई है कि जब कभी भी चाहे कोई भी प्रोसेसिंग लैंग्वेज में हम जा रहे हैं, so that has become very much important to understand. ये जरूरी हो जाता है कि जब मशीन लर्निंग को एक्चुअली मशीन टीचिंग है, मशीन को ना कुछ सिखाना है, and we are talking about this machine teaching, then what we need to do, we are create a learning framework. हमें एक learning framework create करना पड़ता है and provide properly formatted, relevant, clean data for the machine to learn from. And we talk about model, we are creating about the mathematical representation into this. तो हमें डेटा को इस फॉर्मेट में लेके जाके उसको देना है जिस फॉर्मेट में क्लीन डेटा वहां पर अवेलेबल होता है. So input is a key. A machine learning is the sum of a learning that has been acquired from the training data. The model changes as more learning is acquired. Unlike algorithm programming, a machine learning model is able to generalize a deep within multiple cases. If case resembles something the model has seen before, the model can use the prior learning to evaluate the case. The goal is to create a system where the model continuously improves the task you have set. Machine learning for NLP in the text analytics involves the set of statistical techniques, identifying the parts of a speech, entities, sentiments, other aspects of a text. तो मशीन लर्निंग लैंग्वेज में स्पेशली जब NLP की बात करते हैं, तो NLP में नेचुरल लैंग्वेज के अंदर केवल जरूरी नहीं है आपको केवल वॉइस बेस्ड कमांड भी मिलेगी, आपके जो टेक्स्ट कंटेंट है वो भी आपके NLP का पार्ट है. दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ NLP. सो अब नाउ व्हाट इज द टारगेट? जब NLP एंड टेक्स्ट एनालिटिक्स में हम जाते हैं तो हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करनी पड़ती है. कौन-कौन सी? आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, एंटिटीज, कौन-कौन सी उसमें एंटिटीज हैं, क्या शब्दों के बीच में कुछ सेंटिमेंट्स लगे हुए हैं, तभी तो हम उसको नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर पाएंगे. वही मैंने आपसे कहा, हेलो हाउ आर यू, दैट्स अ वन सेंटेंस. हाउ डू यू, अनदर सेंटेंस. हाउ यू आर फीलिंग टुडे. सो things are same, but with the help of a certain kind of a keywords, I'm changing my emotions to talk to you. मैं अपने emotions को change कर रहा हूँ and I'm talking to you, conversing to you. And believe it, with respect to all these conversations, इन सारी conversations के respect में, what will happen? क्या होगा? इन conversations के respect में यहाँ पर develop होगा उसका response. So the thing I'm putting up, अब suppose कि हम यहाँ पे humans हैं, we easily can understand किस सेंटेंस के पीछे क्या सेंस है, क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है, क्या बात है, दैट ऑल आर देयर. पर जब मशीन में हम काम करते हैं तो मशीन में उसको नहीं पता कि वो तो सिर्फ कीवर्ड्स और टेक्स्ट की एनालिसिस करेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट विल सजेस्ट एन आंसर टू अस. और कई बार ऑटोमेशन प्रोसेस है तो आंसर दे भी देगा. दैट इज व्हाट द टेक्निक कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ मॉडल. अब जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हो वही मॉडल है.
that is applied to the other text, also known as a supervised machine learning. तो अपने आप में supervised machine learning भी इसका एक example है. It also could be the set of algorithm that works across largest set of data to extract meaning, which is known as unsupervised machine learning. It's important to understand the difference between the supervised and unsupervised learning, how you can get best both of them. तो अब इसमें सुपरवाइज का भी पार्ट आ गया और इसमें अनसुपरवाइज का भी पार्ट आ गया. ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कंडीशंस डालने के लिए आप सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की कॉम्बिनेशन यूज करें. Text data requires a special approach to machine learning. Text में special approach. This is because of a text data can have hundreds of thousands of dimensions, but tends to very sparse. For example, the English language has a 1 lakh words in common use, but any given tweet only consists of few dozen of them. This differs from something like the video content where you have to have high dimensionality, but you have a orders and orders to data to form formats, not to quite as sparse. तो हो क्या रहा है यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि अब जैसे वर्ड्स की बात किया थी, इतने सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे जाके स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में जाने के बाद में ये जो वर्ड्स होते हैं दैट आर वेरी वेरी लिमिटेड. बहुत लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं. जैसे ट्विटर के ऊपर कुछ ही सर्टेन सेंटीमेंट एनालिसिस कुछ वर्ड्स को लेकर कर ली जाती है. सो कमिंग अप हियर विद अनदर वन which is the supervised machine learning model. अब सबसे पहले supervised machine learning model NLP के लिए और text analytics के लिए यूज करें. अब हम सबको पता है कि supervised machine learning होता क्या है. Now the target is that how it is going to work with this. अब important part है कि जब कभी भी NLP के लिए बात करते हैं, when we are talking about the NLP, so we need to understand all these ones. Support vector machine, Bayesian networks is working, maximum entropy is working, conditional random field is working, neural network and deep learning are working. So let's begin with this. All you really need to know if come across these terms is that represents a set of a data scientist guided machine learning algorithm. So here we are looking for one by one. So first of all, important part इसमें क्या होता है? Tokenization. Tokenization word use किया है. So tokenization involves breaking a text document into pieces that a machine can understand, such as words. देखिए टोकनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, पूरे का पूरा ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है उसको कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं पूरे को, और जिस पार्ट में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं उस पार्ट का हम क्या कह रहे हैं कि हम उसको सर्टेन काइंड ऑफ टोकन्स में क्रिएट करें और वो टोकन्स ही हम मशीन पे देना चाहते हैं. ये हमारा इनपुट टारगेट. सच एज वर्ड्स. नाउ यू आर प्रेफरेबली प्रीटी गुड इन फिगरिंग आउट व्हाट्स अ वर्ड एंड व्हाट इज अ गिविश. जो आपके लिए यूज का नहीं है, जो आपके लिए वेस्टेज है, उसका अलग पार्ट हो गया. जो आपके काम का है दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. ठीक है, बट हाउ डू यू टीच अ मशीन? अब मशीन को कैसे सिखाएंगे ये. सो लेट्स स्टार्ट पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच की टैगिंग कैसे करें. Part of speech tagging means identify each token part of speech, noun, word, adjective, and then tagging it, such as a pause. Tagging forms the basis of a number of important natural language processing. We need to correctly identify the parts of a speech in order to recognize its fact, themes, and to process sentiments. So basically, this is a highly robust model that can pause tag within 90% of accuracy. इससे आपको 90% एक्यूरेसी कम से कम क्रिएट हो जाती है. तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, आप जितने भी स्पीच के वर्ड्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं उनको बोलते हैं पॉज टैगिंग. पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज पॉज एंड टैगिंग. ये टैगिंग यूज कर लीजिए. ये फर्स्ट मॉडल हो गया आपका. नेक्स्ट मॉडल जो आपका है वो है नेम एंटिटी रिकॉग्निशन. अगेन दूसरा, एट द सिंपलेस्ट नेम एंटिटीज आर पीपल. उसमें लोग हैं, थिंग्स, चीजें हैं. मेंशन इन टेक्स्ट. एंटिटी तो हम सभी समझते हैं. जैसे मैं बात करता हूँ फॉर एन एग्जांपल, आई नीड टू गो फॉर अ गार्डन. सो आई इट्स मी, आई नीड टू गो फॉर अ गार्डन. सो गार्डन इज बेसिकली द टू थिंग्स आर हियर व्हिच आर कॉल्ड एज एंटिटी. सो गार्डन इज एन एंटिटी एंड आई एम एन एंटिटी. सो व्हाट टू डू विद मी एंड व्हाट टू डू विद द गार्डन, दैट हैज टू बी टेकन केयर बाय द एंड. अब इसलिए हम नेम्ड एंटिटी का रिकॉग्निशन इसमें करते हैं. Mentioned in the text. Unfortunately, entities can also be hashtagged
emails, mailing address, phone numbers, and Twitter. In just about an entity, if you look at the right way and don't get us stated on बेसिकली जो भी हम बात कर रहे हैं उन एंटिटीज को हम स्पेसिफिकली हाईलाइट भी कर सकते हैं और किसी भी स्पेसिफिक टारगेट पे किसी मेलिंग एड्रेस में कहीं पर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं. So it also important to name entity recognition model rely on accuracy and cost study. Third, तीसरा जो मॉडल हम यूज करते हैं वो होता है सेंटिमेंट. ये सबसे टफ मॉडल होता है because sentiment analysis is processing of determining whether a piece of a writing is positive, negative or neutral. तो कोई व्यक्ति है उसने कहीं कुछ लिख दिया, फेसबुक पे लिख दिया, सोशल मीडिया पे किसी और प्लेटफॉर्म पे लिख दिया, इंस्टाग्राम पे लिख दिया, कहीं भी कुछ भी अगर वो लिख रहा है तो ये वो दे आर राइटिंग अप. जो कहाँ पर कहीं कुछ लिखते हैं वहाँ क्या होता है, जहां पर भी वो लिख रहे हैं तो लिखते वक्त तो वो अपनी सेंटेंस के पीछे एक सेंस डेवलप करनी चाहिए. अब वो सेंस भी अपने आप में ये बता सकता है कि अगर आपके पास में देखिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल, करोड्स ऑफ पीपल्स राइटिंग एवरी डे, हर मोमेंट पर हर मिनट पे मिलियंस ऑफ द पीपल्स राइटिंग एंड पोस्टिंग समथिंग. अब राइटिंग एंड पोस्टिंग जो कर रहे हैं मिलियंस ऑफ द पीपल, व्हाट हैपेंस, उसमें क्या होता है, उसमें जब वो कर रहे होते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट सो मेनी रेपरकशंस विल बी. उस पर्सन की इंडिविजुअल लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है और साथ के साथ जो सोशल मीडिया पर वो जा रहा है उसमें वो औरों की लाइफ में भी कोई ना कोई चेंजेस ला सकता है, लाइक काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दैट. सो सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जब हम कभी सेंटेंस लिखते हैं तो वी हैव टू टेक केयर व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स वी आर यूजिंग. सो अगेन द फ्रेगमेंटेशन वर्ड है, पॉजिटिव लिख रहे हैं, नेगेटिव लिख रहे हैं, न्यूट्रल लिख रहे हैं, एंड देन असाइनिंग अ वेटेड सेंटिमेंट स्कोर ऑन ईच एंटिटी. कितनी बार वो वर्ड्स आए, थीम क्या है, टॉपिक की कैटेगरी के साथ में कैसे चीज बनाई देती है. दिस इज एन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स टास्क. व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर, सबसे मुश्किल बात यही होती है यहाँ पर ये देखना कि सेंटिमेंट्स निकालना, क्योंकि कीवर्ड से आपने पता किया कि कीवर्ड के पीछे का मीनिंग क्या है, सेंस क्या है, और द लॉजिक बिहाइंड दैट. दैट्स मोस्ट डिफिकल्ट. सो that comes with the scientific analysis. So this is an incredibly complex task and varies widely with the context. For example, take the phrases sit burn in the context of a video game. This might actually be a positive state. Creating a set of NLP rules to account for every possible scientific scope or every possible word in every possible context will be impossible. अब देखिए कितनी अच्छी बात इसमें कही जा रही है कि जब एनएलपी के लिए हम रूल क्रिएट कर रहे हैं अकॉर्डिंग तो हर एवरी पॉसिबल सेंटिमेंट स्कोर और एवरी पॉसिबल हर वर्ड में निकालें, है ना. और अब जो सेंटिमेंट की हम बात कर रहे हैं हर वर्ड में इन एवरी पॉसिबल कॉन्टेक्स्ट हर वर्ड का हर कंटेक्स्ट में क्या सेंटिमेंट छिपा है. जैसे एक सिंपल सा वर्ड दैट सपोज दैट यू आर नॉट गुड फॉर मी. अभी यू आर नॉट गुड फॉर मी कई सारे वर्ड हो सकते हैं. एक पर्सन है जो इमोशनली कह रहा है किसी से यू आर रियली नॉट बिकॉज यू आर नॉट हेल्पिंग मी, यू आर नॉट गुड फॉर मी. आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो इसलिए यू आर नॉट गुड फॉर मी. आपके इमोशंस मेरे लिए अच्छे नहीं है, यू आर नॉट गुड फॉर मी. एक और सेंटेंस इसमें आता है कि तुम मुझे सूट नहीं करते हो, क्योंकि इसमें एंगर आ गया, इसमें नाराजगी आ गई. that you really does not suit to me, it means you are not good for me. आप मेरे लिए ठीक नहीं है. तो अब ये जो डिफरेंट सेंटीमेंट है अलग अलग कंटेक्स्ट में नॉट गुड का अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग क्रिएट होगा. ठीक है. कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर, अनसरप्राइजिंगली ईच लैंग्वेज रिक्वायर्स इट्स ओन सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन. तो ये यहाँ तक समझ में आया. तो अल्टीमेटली हम किसी भी बात कर रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ मॉडल वी आर लुकिंग फॉर. अगर हम बात करते हैं टोकनाइजेशन, अब जब एनएलपी की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टोकनाइजेशन, फिर हम बात करते हैं कॉस्ट टैगिंग की, फिर हम करते हैं बात नेम एंटिटी रिकॉग्निशन की, फिर हम बात करते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस. तो आई होप सो यहाँ तक ये बात समझ में आई. अब इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है कैटेगराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन. कैटेगराइजेशन मीन्स sorting content into the bucket.
to get a quick high-level overview of what's in the data. To train a text classification model, data scientists use pre-sorted content and gently shepherd their model until it reaches the desired level of accuracy. The result is accurate, reliable categorization of the text content that takes far less time and energy than human analysis. That's it. तो important क्या बात है इसमें हम क्या करते हैं कि if suppose we have a complete sentences, number of the sentences and the words are there, means sorting content into bucket to get a quick high level overview what is in the data. उठा के डेटा को उठा के रखते भाई, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अलग हो गए, इंटरोगेशंस को अलग उठा के रख दिए, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेटरीज अलग हो गए, उनको अलग रख दिए, एडजेक्टिव अलग हो गए, एडजेक्टिव्स को अलग रख दिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव अलग हो गए, नेगेटिव एडजेक्टिव्स अलग हो गए. तो ऐसे आप अलग अलग टाइप की कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. कैटेगराइजेशन का मतलब आपने कैटेगरी उठा दी करी और क्लासिफिकेशन में भी आपने उनको अलग अलग क्लास डिवाइड कर. सेम कैटेगरी में भी डिफरेंट क्लासेस आपकी हो सकती हैं. तो ये कहलाता है आपका कैटेगराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन. द रिजल्ट इज एक्यूरेट, रिलायबल categorization for a text document that takes far less time and energy than human analysis. Unsupervised. Sir, what is the difference between categorization and classification? बहुत बढ़िया. कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन में अंतर है. जैसे कार की अपनी एक कैटेगरी है और बाइक की अपनी एक अलग कैटेगरी है ना. अगर आपने कहा एक कैटेगरी मेरे पास क्या है, मेरे पास व्हीकल है दो तरीके के, 4 व्हीलर्स हैं और मेरे पास 2 व्हीलर. अब 4 व्हीलर्स भी आपके पास कई तरीके की. तो 4 व्हीलर्स की क्लास क्या है कि मेरे पास कुछ 4 व्हीलर्स हैं जो लग्जरियस हैं और कुछ 4 व्हीलर्स हैं जो एसयूवी कैटेगरी में आते हैं, कुछ 4 व्हीलर हैं जो सेडान में आते हैं. तो अब आपने उन 4 व्हीलर्स को भी एक जो कैटेगरी क्रिएट करी थी उसमें उनको ऑर्डर दे दिया, ये मेरी सबसे अच्छी कार है, ये मेरी उससे कम अच्छी कार है, ये मेरी उससे कम अच्छी कार है सारी की सारी कार है, लेकिन उन कारों को आपने क्लास डिवाइड कर दिया. दैट्स व्हाट. तो क्लासिफिकेशन क्या कहता है, विद इन अ सेम कैटेगरी यू कैन ग्रेड द थिंग्स. आप अपनी सेम कैटेगरी के अंदर आप उनकी ग्रेडिंग कर सकते हो, और जो आप ग्रेडिंग क्रिएट कर रहे हो वो ही ग्रेडिंग क्या कहलाने लगती है यहाँ पर, क्लासिफिकेशन. तो उस ग्रेडिंग के साथ आप क्लासिफिकेशन क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. ओके सर. अब ये तो आपके सारे मेथड्स हो गए किसके, जो सुपरवाइज में. तो आपसे देखिए पहला जो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कौन कौन से मेथड्स आप यूज कर सकते हैं एल्गोरिथम, तो ये आपके एल्गोरिथम्स हो गए जो आप यूज कर रहे हैं. इन एल्गोरिथम्स के बेसिस पर आप किस टाइप के मॉडल्स क्रिएट करते हैं, तो टोकनाइजेशन कर सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन कर सकते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. अब ये सारे मेथड्स आपने यूज कर लिए. अब आप जाते हैं अनसुपरवाइज्ड की तरफ. जब आप अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में जाते हैं एनएलपी के लिए और टेक्स्ट एनालिटिक्स के लिए, तो अब आप क्या क्या करने वाले हैं. तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग अ मॉडल without pre-tagging or annotating. Some of these techniques are surprisingly easy to understand. है ना. अब क्या हो रहा है, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एंड मॉडल. अपनी मॉडल की आप जो ट्रेनिंग करने आ रहे हो बिल्कुल वैसी है जैसे आपने पहले पढ़ी. क्या किया जाता है उसके अंदर पहले से प्री टैगिंग और एनोटेशन कर दिया जाता है सुपरवाइज के अंदर. लेकिन यहाँ पर आपको पता नहीं, आपने तो बस रियल टाइम बेसिस पे जाएंगे, छाटेंगे, अलग अलग करेंगे और उनकी कर देंगे. तो इसमें सबसे पहला जो मेथड यूज किया जाता है वो क्लस्टरिंग किया जाता है. क्लस्टर करते हैं. क्लस्टर का मतलब कि थोड़े से भी सिमिलर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिमिलर डेटा होता है, कुछ भी एक दूसरे से मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो उनकी क्लस्टरिंग कर देते हैं. जैसे कोई भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, उस बारी भीड़ में आपको बहुत सारे लोग हैं, अब आपको छाटना है. तो छाटने के लिए आप कोई भी एक सर्टेन पैरामीटर फिक्स करेंगे और पैरामीटर फिक्स करने के बाद उनकी क्लस्टरिंग करना स्टार्ट कर देंगे. कैसे कर देंगे, सारे मेल से एक तरफ हो जाओ, सारे फीमेल से एक तरफ हो जाओ, मतलब नहीं है किससे क्या है, लेकिन जो आपको मेल जैसा लग रहा है उसको मेल साइड कर दिया, फीमेल एक साइड कर दिया, वन कैटेगरी. फिर बड़े बूढ़े एक तरफ कर दिए, जवान एक तरफ कर दिए, बच्चे एक तरफ कर दिए. तो अगर सिमिलर टाइप ऑफ थोड़ा सा भी सिमिलरिटी अगर आप दिखाई देती है, ये पुट इनटू अ सर्टेन ग्रुप, इसको क्लस्टरिंग कहते हैं.
These clusters are sorted based on our importance and convenience, और जैसे जैसे इंपॉर्टेंस होती है उसके हिसाब से हम इसको करें। तो ऐसा हम पहले भी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं कि क्लस्टर जब हम बनाते हैं तो क्लस्टर में सबसे पहले उस चीजों को छांटते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है ना। तो ऐसा बहुत बार आप करते हैं, आपने अपनी एल्मिरा को ओपन किया और एल्मिरा को ओपन करने के बाद you are looking for something, number of things are in Almira, but you are looking for something, suppose कि आपकी एक बैटरी की रिक्वायरमेंट है, आपने Almira को खोला, उसमें सेल पड़े हुए तो आपने केवल सेल को उठा के रखा, लेकिन सेल को ढूंढते वक्त आपको दिक्कत हो रही है तो आपने चीजों को सेग्रीगेट कर लिया, आपके काम के सेल को बैटरी से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप क्लस्टरिंग को करते हैं। अनदर टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, LSI। ये कोई इंपॉर्टेंट है। The technique identifies on words and phrases that frequently occur on each other data. Data scientists use LSI for faceted search or for returning search results that are an exact search. अब दूसरा जो तरीका, एक तो क्लस्टरिंग आप यूज कर रहे हो आंसर, अनसुपरवाइज्ड में एक और नई टेक्निक आप यूज करने जा रहे हो मॉडल क्रिएट करने के लिए, वो है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स, LSI यूज कर रहे हैं। इसमें क्या कहते हैं, दिस टेक्निक आइडेंटिफाइज ऑन वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट फ्रीक्वेंटली अकर विद ईच अदर। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के साथ या ऐसे फ्रेजेस जो दूसरे फ्रेजेस के साथ में लगभग लगभग अक्सर करके साथ में आते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर यूज किए जाए। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने सपोज करो हाउ आर यू। अब हाउ आर यू जो वर्ड है बहुत ज्यादातर हाउ आर के साथ आता ही आता है, स्पेस के साथ आएगा ही आएगा, है ना। तो कुछ ऐसे सेंटेंस है हाउ डू यू डू, व्हाट्सअप नाउ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनके साथ में। तो इसमें क्या है, LSI में हम यही करते हैं कि इस टाइप के वर्ड्स को सर्च करते हैं फ्रेजेस के साथ में और उनकी मीनिंग्स को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल द टर्म मैनिफोल्ड एंड एग्जॉस्ट आर क्लोजली रिलेटेड डॉक्यूमेंट दैट डिस्कस इंटरनल कंबशन इंजन्स। So when you Google manifold, you get the result also continuous. इसीलिए ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ सेंटेंस के साथ सिमिलर टाइप ऑफ आंसर भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है इसमें मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। This is another technique for unsupervised NLP machine learning. This uses latent factors to break a large matrix down into the combination of two smaller matrices. Latent factor has similarities between the items. Think about sentence, I threw the ball over the mountain. The word threw is more likely to be associated with the ball than with mountain. तो अगर आप कहें ball over the mountain is not so much related, but threw जो word है is related to the ball. तो यही वो कह रहे हैं कि मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, the uses latent factors to break large matrices down into the combination of two smaller matrices. तो अब इसको अगर मुझे I threw the ball over the mountain को अगर मुझे ब्रेक करना पड़ा तो I would like to break this over the mountain. I threw the ball. इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। In fact, humans have a natural ability to understand the factors that make something throwable, but a machine learning NLP algorithm must be taught this differently, है ना। अब जैसे मैंने कहा आपसे I'm gonna to say I threw, तो आपको समझ में आ जाएगा देखते कि कुछ ना कुछ फेंकने वाले हैं, I threw something। अब मशीन बेचारी क्या समझेगी थ्रू का मतलब क्या होने वाला है। तो इन दैट सिचुएशन ये कहते हैं कि मशीन को जब सिखाया जाता है उसको सारे सेट ऑफ यूनिट्स के साथ में बातें सिखाई जाती है ना। सिंगल यूनिट से उसका काम नहीं चलता, उसको सब कुछ सिखाया जाता है। So unsupervised learning is tricky but far less labor data intensive that is unsupervised counterpart। ठीक, यहाँ पर ये एल्गोरिथम में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। वी एक्सट्रैक्ट सर्टेन इंपॉर्टेंट पैटर्न within a large set of text document to help our models to this. Now coming up the next one, concept matrix. In a nutshell, unsupervised learning applied to the top article on Wikipedia. Using unsupervised machine learning, we built a web of semantic relationship between the articles. This web allows our text articles and NLP to understand the apple is close to the field and is close to the field, but it is far away from the line, and that is closer to the line than it is to linear algebra. देखिए कितना अच्छा मतलब डेवलपमेंट है और हाउ मच सिंपल इट इज टू से। तो अब इसमें क्या करते हैं, हमारा काम क्या है, हमारा काम है सेंटेंसेस को प्रिडिक्ट करना, उनको समझना
और उनके हिसाब से आंसर्स डेवलप करते हैं, उसी के हिसाब से हमें आंसर्स को डेवलप कर निकालें। तो अब उन आंसर्स को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन आंसर्स को डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट कि हमें क्लोज रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, जिससे हम पूरे सेंटेंस को समझ पाए, जिससे हम ये समझ पाए कि जब ये सेंटेंस बिल्ड किए जा रहे हैं तो इन सेंटेंसेस के आउटकम जो हम डेवलप करेंगे तो किन टर्मिनोलॉजी को कंप्लीट करके ये करेंगे। ठीक है, so this web allows our text analytics and NLP to understand that apple is close to fruit and is close to tree, but it is far away from line that is closer to the line than it is to the linear algebra. तो अगर एप्पल के पास में अगर कोई शब्द फ्रूट है तो एप्पल इज मच क्लोजर, तो इसका बकेट अलग बन सकता है। एप्पल इज अगेन क्लोजर, एप्पल इज अगेन क्लोजर विद द ट्री, ट्री के पास में भी है। अगर एप्पल की बात करें और आगे बात करें तो ट्री के कंपैरिजन में फ्रूट के ज्यादा क्लोज है, और अगर मैं लाइन कहूँ तो लाइन के कंपैरिजन में ट्री के ज्यादा क्लोज है, और अगर कोई कहे लीनियर अलजेब्रा तो लीनियर अलजेब्रा के कंपैरिजन में लाइन के ज्यादा क्लोज है। क्योंकि एक बात तो एप्पल लाइन खा सकता है बट लीनियर अलजेब्रा हैज नो बिजनेस विद द एप्पल। तो unsupervised learning through the concept matrix forms the basis of understanding of the semantic formation. Second is called as a syntax matrix. सिंटेक्स तो एक मैट्रिक्स कौन सा हो गया, कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स डेवलप किया है अनसुपरवाइज्ड में, और क्या किया है, सिंटेक्स मैट्रिक्स। A syntax matrix is unsupervised matrix factorization applied to a massive corpus of content, many billion specimens. The syntax matrix helps us understand the most likely passing of a sentence, forming the base of our understanding of syntax. Again, recall our discussion earlier in this article. अब इसमें क्या है, सिंटेक्स मैट्रिक्स में क्या था, ये भी एक अनसुपरवाइज्ड मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन है अप्लाइड टू अ मैसिव कॉर्पस ऑफ कंटेंट, बहुत सारे कंटेंट होते हैं। द सिंटैक्स मैट्रिक्स हमें हेल्प करता है मोस्ट लाइकली पार्सिंग ऑफ द सेंटेंस, फॉर्मिंग द बेस ऑफ द सिंटैक्स मैट्रिक्स की मदद से हम यहाँ पर सेंटेंस को फ्रेम करके आउट करते हैं। तो ये अगर मैं इसको रिवीजन फॉर्मेट में है तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में जा रहे हैं, जिसमें क्लस्टरिंग करते हैं और एलएसआई टेक्निक यूज करते हैं, मैट्रिक्स के फैक्टराइजेशन करते हैं, कंसेप्ट मैट्रिक्स डेवलप करते हैं, सिंटैक्स। I expect that this is all clear here. Now coming on this, like a little background, what is the natural language processing? So natural language processing broadly refers to the study of development of a computer system that can interpret speech and text as a human naturally speaks and types it. Human communication is the frustratingly vague at that time. But see this baat hai. And we all use basically abbreviation and don't often bother the correct in spelling. These inconsistencies make computer analysis and natural language difficult at the best. But in the last decade, both NLP technique and machine learning algorithm have processed very effectively. So, semantic information. Semantic information is the specific meaning of an individual word. A phrase like "the bat flew through the air" can have multiple meanings depending on the definition of a bat. Wind, mammal, wooden stick, or something else entirely. So knowing the relevant definition of the writer to understand the meaning of the sentence. Another example, Billy hit the ball over the house. As a reader, you may assume that a ball in a question is a baseball. But how do you know? The ball could be a volleyball, a tennis ball, even a hockey ball. I'm using that baseball because of the path of the balls most often in such a way. But without natural language machine learning, a computer wouldn't know to make these connections. तो NLP ये मदद करेगा कि Billy hit the ball over the house. तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है सिमेंटिक इंफॉर्मेशन। तो वर्ड्स अपने आप में, सेंटेंसेस अपने आप में कंफ्यूजिंग होते हैं, दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मीनिंग्स इन बिटवीन दैट, इंफॉर्मेशन बहुत सारे होते हैं, सो दैट्स व्हाई सो सिंटैक्स इंफॉर्मेशन इज हियर। मूविंग अहेड, द सेकंड की कंपोनेंट फॉर द टेक्स्ट इज सेंटेंस or phrase structure. Know a syntax information, take the sentence. Sarah joined the group already with some such experience. Who exactly has such experience here? Sarah or the group? Depending how you read it, the sentence has a very different meaning with respect to Sarah's ability. अब सारा ने एक ग्रुप ज्वाइन किया, सारा joined the group already. सारा ने एक ग्रुप ज्वाइन किया with some such experience.
विद सम सर्च एक्सपीरियंस, कुछ सर्च एक्सपीरियंस इसके साथ है सारा मतलब। अब कितना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब सारा का खुद का अपना सर्चिंग एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पर उसने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, या सारा ने एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया जिसका अपना खुद का सर्च एक्सपीरियंस है। अब आप जब कंफ्यूज खुद हैं अपने आप में, then see how much tough it is for the machine and to understand. So that happens, तभी आपने देखा होगा जब आपकी Gmail पे टेक्स्ट और कंटेंट्स आ जाते हैं, and that situation the text and contents replies, वो रिप्लाई करते हैं। और रिप्लाई करने का मतलब क्या होता है? रिप्लाई यही सजेस्ट करते हैं कि आप ये लिखना चाहते हैं, क्या आप ये बताना चाहते हैं। Finally, you must understand the content of what phrase sentence appears in that. What is the concept being discussed? If a person says that something is sick, are they talking about the healthcare and the video games? The implication of sick is often positive and mentioned in the context of gaming, but almost always negative when discussing the behavior. अब sick word दोनों जगह यूज होता है, गेमिंग में भी यूज होता है और हेल्थ केयर में भी यूज होता है। So that is what the target. So ML versus NLP and using the machine learning on the natural language sentences. तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा, सिमेंटिक इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट है, सिंटैक्स इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। सिमेंटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट, एक एक्ट जो है जो एक से दूसरी चीज को रिलेट करता है। स्फेरिकल प्ले आइटम, प्लेस, पीपल, लाइन। सिंटैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट क्या है, एक्शन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन में कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन द सेंटेंस अबाउट अ चाइल्ड प्लेइंग विद अ बॉल। कॉन्टेक्स्ट किस किस के बारे में कहां कैसी बात करें। तो अब लेट्स अटेंड टू द सेंटेंस बिली हिट द बॉल ओवर द हाउस। टेकन सेपरेटली थ्री टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सिमेंटिक इंफॉर्मेशन भी मिलती है इससे, सिंटैक्स इंफॉर्मेशन मिलती है और कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। एक ही सेंटेंस से सारी की सारी चीजें मिलती है। तो पर्सन सिमेंटिक इंफॉर्मेशन, स्ट्राइक कर रहा है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक कर रहा है। सिंटैक्स इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट है, स्ट्राइक करने का ऑब्जेक्ट प्रोसेस है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, दिस सेंटेंस इज अबाउट अ चाइल्ड प्लेइंग विद अ बॉल। ये कॉन्टेक्स्ट है, जो बच्चा खेल रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टेड in the today's session, in the today's discussion, you all will be able to understand really that what exactly we mean it. हमारा इसका मतलब क्या है, what we are planning to do that. So in this situation we understand that कि किस तरीके से हम मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके के सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मॉडल काम करते हैं, कैसे उन मॉडल्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हम सारी इंफॉर्मेशन को ड्राफ्ट करते हैं, फ्रेम करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर हियर। तो इन सभी चीजों के साथ में I wish that you are able to understand. Meanwhile, if you feel any question, any doubt, that will be most welcome so that we can close the session. Sir, in my opinion, sir, semantic means here is the meaning, word meaning, and Semantic syntax syntax means the order of a sentence, coming up. subject, then Semantic information is specific meaning of an individual word. जैसे a phrase like the bat flew through the air can have a multiple meanings. इसके बहुत सारे yes, मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन उसका कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग तो होगा जिसको हम कर रहे होंगे। तो इसीलिए एग्जांपल के तौर पर जब यहाँ पे दिया गया कि जब बिली हिट द बॉल ओवर द हाउस, सिमेंटिक इंफॉर्मेशन क्या है कि बिली कोई पर्सन जो किसी दूसरी चीज को हिट कर रहा है, एक चीज दूसरी चीज को हिट, बिली पर्सन है, बॉल को हिट कर रहा है, ठीक है, और कहाँ हिट कर रहा है ये, सो द पर्सन, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे, कुछ कर रहा है वो, एन एक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग। स्फेरिकल प्ले आइटम है, कुछ खेलने की चीज है, जो बॉल है, गोल है, प्लेस है जहां पर लोग रहते हैं, हाउस के ऊपर। तो मेनी इंफॉर्मेशन वी आर रिसीविंग फ्रॉम दिस सेंटेंस। और सिंटेक्स में क्या है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा एक्शन है और कौन सा इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बताओ and the context means in the कॉन्टेक्स्ट which बिहाइंड सेंस, context कॉन्टेक्स्ट किस बिहाइंड, किस सेंस में बात की जा रही है। तो सारी की सारी कहानी में हो क्या रहा है एक अलग बात है, लेकिन ये कहानी किससे रिलेटेड है? कोई बच्चा खेल रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है या कोई बड़ा खेल रहा है। तो रियली वी कैन नॉट जस्ट प्रेडिक्ट इट्स बच्चा, कोई खेल रहा है, समवन इज प्लेइंग, सो दैट इज कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या है, किसके बारे में बात की जाए, कोई पढ़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई ड्राइव कर रहा है, तो ये कंटेक्स्ट। ठीक।
सर इसमें एक सेंटेंस आया था सर कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज ट्रिकी बट फार लेस लेबर एंड डेटा इंटेंसिव देन इट्स सुपरवाइज्ड learning. हाँ